So type conversion and typecasting. There are two types of typecasting, that is what implicit and explicit. So first let us learn about that. So see guys. For an example, implicit means Python automatically converts int float, depends on the function, or we can say depends on the result. It automatically change the type of the variables. For an example, if I say a equals 4 and b equals 2, I want to perform a division, right? So what will you see that when you will say that you want to check the type of this C, you said a equals 4, b equals 2, and you want to perform a division and you want to store that result into C, and you said you want to check the type of this C, right? So you will see that आपने a को एक integer value दिया and b को आपने integer value दिया, but when you will check the type of C, this is what, this is float. What it is कि आपका पाइथन ऑटोमेटिकली डेटा टाइप चेंज कर रहा है, और इस तरीके की टाइप कास्टिंग को हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, राइट? अब ये फ्लोट क्यों हुआ? सो लेट्स सी द वैल्यू ऑफ सी आल्सो. सो यू कैन सी दैट इज 2.0. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली when we are dividing, we are using a division operator, it converts the value or it gives the result into the float. जब भी हम डिवीजन ऑपरेटर को यूज करते हैं हमारी पाइथन लैंग्वेज में, What क्या होता है यहाँ पर कि हम जब एक इंटीजर नंबर को इंटीजर नंबर से या किसी फ्लोट को किसी इंटीजर से, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से जब भी हम डिवाइड करते हैं, आइदर इट इज इंटीजर और फ्लोट, तो हमें डिवीजन ऑपरेटर हमेशा फ्लोट में रिजल्ट देता है. तो हियर यू कैन सी व्हेन वी चेक द टाइप ऑफ दिस सी, दिस इज ऑफ फ्लोट टाइप, ठीक है? और जब हमने उस सी का रिजल्ट भी देखा तो दैट वाज आल्सो 2.0, और इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, राइट? नाउ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो डेटा टाइप्स हैं, यू कैन सी देयर आर 5 टाइप ऑफ बेसिक कन्वर्जन्स, बेसिक 5 टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग: इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स एंड बूल. If any case we want to convert the value into integer, or if you want to convert the integer value into float, if you want to convert the float value into complex, if you want to make a number or any text to string, we want to do such type of conversions. Those conversions we can say these are typecasting, means to convert one data type value into another data type value, another data type. So this is what typecasting. Like if I say that a equals 5 and I said that float of a, and I want to say that it's r, right? Now I want to check the type of value of r. You can see that the value of r is 5.0. so what you did, आपने क्या किया? आपने एक टाइप कन्वर्जन किया, टाइप कास्टिंग किया, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिस आपने a को एक इंटीजर वैल्यू पास किया था, बट नाउ अब आप देख रहे हैं कि जब आपने उसको कन्वर्ट किया फ्लोट में, तो यू गॉट द रिजल्ट दैट इज 5.0. तो आप क्या कर रहे हैं? फ्लोट फंक्शन का यूज कर रहे हैं. फ्लोट फंक्शन की हेल्प से आपने क्या किया? इंटीजर वैल्यू को आपने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया. सिमिलर टू दैट आप और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. यहाँ पर अगर आपके पास कोई, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट कि आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इफ आई से लाइक दैट. So guys, just think once. I said कि कोई complex value, I want to convert that value into the float value. But here you can see that is it guys? Yeah. Automatically. Yeah, automatically change. आप एक बार बताइए मुझे, मैंने कहा मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई सेड कॉम्प्लेक्स 12 plus 5 3. So 12 is what? 12 is your real part. Okay, and 5 is imaginary part. Because 5 is with j part. तो जो आपका 2j है, जिसमें 2 क्या है? आपका इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू. ओके, और हम बात कर रहे हैं 12 की, तो 12 क्या है? आपका रियल पार्ट है. तो गाइस प्लीज लेट मी नो, कैन वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू फ्लोट वैल्यू? जबकि हमें पता है फ्लोट वैल्यूज क्या आती है? एनी डेसिमल वैल्यू. So yes guys, is it possible to convert complex data type into float or integer?
or if I say that I want to convert this complex number into integer. So yes guys, बताइए मुझे एक बार, is it possible or it will raise error? Ma'am, no, not possible. Not possible. Okay, not possible. Okay. Okay, so you are right actually, because complex number is containing two values. One is real part value and second is what, imaginary part value, right? But when we are trying to convert our complex value into, we can say complex number को अगर हमें float या int में convert करना, so this is not possible. Definitely we will raise or we will get an error, right? This is what type error. Fine. Now, if I say that there is a string. Now I said that there is a string and I want to convert that string into the integer number, right? I said 10.5. So it will know. Why? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहा है ये, कि ये मैं बता रहा है that this is a value error. Why? Because जो string है आपका, आप integer number में convert करना चाह रहे हो अपने एक string को, तो उस स्ट्रिंग के अंदर आपका जो वैल्यू होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए और विद बेस 10 होना चाहिए. फ्लोट वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट नहीं है. ओके, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ. आई सेड कि आपका कोई स्ट्रिंग में आपने कोई फ्लोट नंबर लिया हुआ है, उस फ्लोट नंबर को आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट विल रेज वैल्यू एरर, बिकॉज जो आपका स्ट्रिंग है वो अगर इंटीजर है और विद बेस 10 है, मीन्स यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आपका सिर्फ वैल्यू 10 या 105 है, देन एट दैट टाइम दिस इज पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट वैल्यू इंटीजर इन इंटीजर. बट अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ बोलती हूँ कि आपका एक बाइनरी नंबर है यहाँ पर, जैसे से 0B, so again it will raise an error, right? So this type casting is not possible. So we have to keep in mind that अगर आपका string इंटीजर पार्ट कंटेन कर रहा है और विद बेस 10, मतलब जब आपका ये जो वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू है, मतलब ये बेस 10 के साथ होता है ये वैल्यू, ठीक है. सिंपल इंटीजर वैल्यू की जब हम बात कर रहे थे, मतलब इसका बेस 10 है, अगर उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं दैट इज पॉसिबल. बट अगर यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू है या फिर कोई बाइनरी नंबर, कोई हेक्साडेसिमल या कोई भी अदर कन्वर्टेड वैल्यूज है इंटीजर की, कोई और फॉर्म है, तो हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करा पाते. ठीक है. So now if I say that अगर फ्लोट का करना हो तो अगर मैं फ्लोट में कहती 10.5, नाउ दिस इज पॉसिबल, क्योंकि अब क्या कह रहा है कि फ्लोट के लिए कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर. ओके, फ्लोट में क्या है, अगर स्ट्रिंग में कोई फ्लोट वैल्यू है तो वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू फ्लोट वैल्यू, सो दैट इज फाइन. अगर मैं यहाँ कहती हूँ, अगर मैंने यहाँ बोला दैट फ्लोट or I said that it's 11, it will convert that into float value. So these type of conversion are here. So guys, please do practice with me. तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है साथ साथ. Strings are immutable, but we are not doing mutability and immutability here. I will come to that point later. We are not doing that. We are doing just type conversion, and that is possible. Immutable and mutable concepts, I'm coming on that, Devansh, just wait for that. Okay, so floats. Okay, so float is done. Now if I say that I want to convert an integer number into complex, so if I said it's only 11, so this is possible with me, means but I have passed only a value, a single value I have passed to this complex number, means it will consider it as real part, right? So when I will execute it, you will get the result, that is 11 plus 0g. Okay, if now if I said that complex of 11 comma 12, so now what is here means this is 11 comma 12 is first part will be considered as real part and second value will be considered as imaginary value. So you can see here means 11 plus 12g, right? But now if I say that क्या हम string को convert कर सकते हैं हमारे complex में, like if I say 10,
So you will see that it is also possible with complex, means we can convert it, right? But if I say that complex of, there are two string values. So now is it possible? No. Now it's not possible. It will raise an error, and this is what type error means. Complex cannot take second argument if first is a string. Complex can take two arguments. I have told you here that it can be 11, 12 means first is real and second is imaginary part. But अगर मैं बात कर रही हूँ कि क्या दोनों स्ट्रिंग हो सकती है मेरे कॉम्प्लेक्स के अंदर, कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में मुझे दोनों स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही है, दोनों आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग मिल रहे हैं, क्या मैं उसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करा सकती हूँ? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. मींस complex cannot take second argument if first is a string. So I hope it's clear to you all, guys. Now rest next is what, it's bool. So if I say bool means boolean, there are two type of boolean values. I must say true and false. So we have to keep in mind that if we are talking about true and false, their first letter is always capital, because they both are keyword also. And so boolean will return result. We will get in only two formats, like it's true and false values, right? Now if I say bool of 0, so simply you will get false. And if I say bool of 1.3, so if I am passing 0 value or 0.0 value, or if I'm passing any empty string, then in that case bool will return false. I'm repeating again. If we are saying any 0 value or 0.0 means any float 0.0 or any empty string, if we are trying to convert them into boolean, so it will return a result that is false. But if I say that 1.3, so this is a value, it means true. Okay, so we have to keep in mind that if we are not having any value like 0, 0.0 or empty string, at that time it will return false. But if we are passing any value either in string or integer or complex, or we can say float, so at that time it will return as true. So guys, is there any issue or any problem? So you can ask. So I hope it's okay to you all. Okay. So some questions are here in front of you. So guys, just tell me only those that which are returning result as false, nothing else. Just give the reply in your chat box that which statement is returning false value. There are these questions in front of you, so you have to return the results. So you can say that first is true, or that one is false. So like that you can reply. Check carefully, guys. Yes, what about others? Only 5 or 6 persons are replying. This is not a very big or complex question. You just need to reply. I don't want to take their names.
So okay, fine. Who has answered? That is fine. Thank you. Okay. So let's move. Let us take the first statement answer. So bool of 10 is there is a value inside this function. So definitely this is true. Second is also true. Third true, but fourth is false, right? Then fifth is true. Sixth is true. Seventh is false. Bool of स्ट्रिंग के अंदर आपने ट्रू या फॉल्स दिया हुआ है बट समथिंग इज देयर तो डेफिनेटली दे बोथ आर ट्रू एंड नाउ द लास्ट वन दैट इज व्हाट बुल ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग सो आई टोल्ड यू स्पेशली मैंने बोला था वहां पर कि अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं मींस वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग इनटू दैट स्ट्रिंग मींस दैट इज फॉल्स so last statement result you can see on the screen that when you said bool of empty string this is false right so you can guys correct yourself right now okay, one more thing that if you want to check the real part and imaginary part of your complex number, so you simply you will write your complex number and you will say that z dot real. What actually happening here that guys जो आपका ये जो value होता है ना ये क्या होता है एक object होता है means object एक बार यहाँ पे देखिए आप I said कि मेरा ये कोई मैंने बोला z एक मेरा वेरिएबल है ओके नाउ इफ आई से दैट मैंने इसको वैल्यू 10 पास करना ठीक है अब मैं क्या कर रही हूँ एक मेमोरी एड्रेस ले रही हूँ कि मेरा मेमोरी एड्रेस कुछ इस तरीके से 11 कुछ भी ऐसे कुछ है ठीक है नाउ अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है ये जो आपका 10 है ना वो इस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है ना कि इस z के अंदर देखना एक्चुअली में हो क्या रहा है ये जो 10 ये जो वैल्यू होती है जो हम वैल्यू असाइन करते हैं हमारी वेरिएबल्स को मींस हम ये जो 10 है इसको हम एक मेमोरी एड्रेस दे रहे हैं जहां पर ये वैल्यू स्टोर हो रही है राइट एंड जो z होता है वो क्या होता है इसका पॉइंटर होता है इस एड्रेस का रेफरेंस इस वैल्यू का रेफरेंस होता है ठीक है कि मतलब z क्या होल्ड कर रहा है आपके इस मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर रहा है जिस मेमोरी एड्रेस के अंदर ये वैल्यू है आई एम अगेन रिपीटिंग दैट z जो आपका ये जो वेरिएबल है इसका मतलब ये है कि आप का z ये रेफरेंस है ये पॉइंटर है इस मेमोरी एड्रेस का मतलब ये मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर रहा है इस मेमोरी एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है वो किसको असाइन हो रही है एक्चुअली में z को मतलब z किसका पॉइंटर है 10 का राइट z क्या एक्चुअली में रेफरेंस है 10 का 10 एक्चुअली में z के अंदर लाई नहीं कर रही है 10 वैल्यू कहाँ लाई कर रही है इस मेमोरी एड्रेस के अंदर और ये मेमोरी एड्रेस कौन होल्ड कर रहा है ये z होल्ड कर रहा है ठीक है अब क्या कहना चाह रही थी मैं कि ये 10 जो है ना आपका ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ओके 10 क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या करता है मेटाडेटा एट्रीब्यूट्स मेथड्स कंटेन करता है ऑब्जेक्ट्स क्या करता है मेटाडेटा मेथड्स एट्रीब्यूट्स ये सब कंटेन करता है तो दैट्स व्हाई आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब आपने इसको कोई वैल्यू असाइन की मतलब ये क्या है एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन तो हमारा ये क्या है एक ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट्स के पास अपने मेथड्स होते हैं तो आपने क्या किया z डॉट रियल अब क्या करेगा मतलब ये चेक करके बताएगा कि इस वैल्यू का रियल पार्ट क्या है so when I will execute that you can see that the real part is 1.0 right and now if I want to check the imaginary part this is what 2.5 like that means what happened actually जो डॉट रियल मतलब क्या है कि इसका z का मेथड है ये अब z क्या है z भी एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट ही है जो क्या होल्ड कर रहा है ये 1 प्लस 2.5 एक्चुअली एक एड्रेस को होल्ड कर रहा है उस एड्रेस के अंदर ये वैल्यू है ठीक है और उसके कुछ अपने मेथड्स हैं और वी कैन यूज और वी कैन एग्जीक्यूट दोज मेथड्स एंड वी कैन गेट द वैल्यूज राइट नाउ आई एम कमिंग ऑन द म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल concepts so let me first clear you what is immutable and what is mutable immutable is what like if you want to change the value and as the value change memory address will get changed I'm repeating आपने आपके सामने एक एग्जांपल है दैट इफ यू सेट दैट p equals 4 आपने कोई इंटीजर वैल्यू पास किया हुआ है दैट इज 4 now if I check the id of this p memory address of this p and if अगेन मैं क्या करती हूँ एक और वैल्यू असाइन करती हूँ सेम वेरिएबल को राइट
एंड एट दैट नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा से उस पी का अगर आईडी चेक करती हूँ तो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस पॉइंट दैट कि जैसे ही वैल्यू चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आईडी चेंज हो रहा है, और इस कंसेप्ट को हम इम्यूटेबल कहते हैं। हमें ये चीज तो पता ही थी गाइस कि अगर हम वैल्यूज चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेमोरी जो पी पहले 4 को पॉइंट कर रहा था, मतलब 4 जो वैल्यूज एड्रेस पे थी उसको पॉइंट कर रहा था, मतलब रेफरेंस था उसका, अब ये किसका रेफरेंस बन गया, अब ये 6 का रेफरेंस बन गया। सी हियर, पहले ये 10 का था, लेट मी से दैट अब मैं कोई और वैल्यू पास कर रही हूँ इसको, लाइक 6, और ठीक है, अब ये किसका रेफरेंस हो गया, इसका। अब ये इसका रेफरेंस नहीं रहा, किसका हो गया है, इसका, जो किसी मेमोरी एड्रेस के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, पहले जो जिस इस Z का जो मेमोरी एड्रेस था वो क्या था 115242, लेकिन अब इसका मेमोरी एड्रेस चेंज हो गया, जहां पर ये 6 वैल्यू स्टोर हुई है उसका मेमोरी एड्रेस कुछ और है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर हो रही है कि आपने कहा P इक्वल्स 4, एट दैट टाइम आपने उसकी आईडी चेक की और दोबारा उसको एक और वैल्यू अगर असाइन की और अब उसकी अगर आप आईडी चेक कर रहे हो तो यू कैन सी दैट कि ये दोनों क्या है, जब एड्रेस चेंज हो रहा होता है, जैसे ही वैल्यू चेंज हुई एड्रेस अगर चेंज हो रहा है, दिस इज व्हाट इम्यूटेबल, राइट। हियर यू कैन सी दैट आपने बोला P इक्वल्स 4, राइट, और अब आपने क्या किया, P Q को P का रेफरेंस बना दिया, तो मतलब क्या कर रहे हो एक्चुअली में आप एक कॉपी क्रिएट कर रहे हो P का बाय Q, राइट। नाउ यू सेड आपने एक फिर से आपने वैल्यू 4 को किसको असाइन किया, R को। तो गाइज इन तीनों का आईडी डिफरेंट होगा या सेम होगा, जस्ट थिंक एंड रिप्लाई। मैम P और Q का सेम होगा, R का डिफरेंट होगा। ओके, बाय द वे हु इज दिस, अमन? यस मैम। ओके ओके, बट आई मस्ट से अगेन दैट प्लीज रिवाइज योर कॉन्सेप्ट अगेन। अभी मैंने आपको एक पिक्चर शो किया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके फिर से आंसर करना है इस क्वेश्चन को। ओके शुभम, हर्षित, okay okay guys, please keep replying. Yes Zaid, where are you today? अल्पना, दिव्या, आपको समझ में आ रहा है? दीपक कुमार, देवांश, sure I will wait for that. Yes Devansh, where are you? Now tell me. See, देखो मैं क्या कह रही हूँ, मेरा ये एक वैल्यू 10 है, ठीक है, मैंने क्या किया, आप I said मैंने P and if I say this is R, now I said R and P, okay। अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रही हूँ। आई सेड मेरे पास एक वैल्यू 10 है और मैंने क्या किया, लेट मी फर्स्ट इरेज दिस। अब देखिए आप, अब मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास जो वैल्यू 10 था वो किसको मिला, पहले मैंने किसको दिया, पहले z को दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने बोला z इक्वल्स p और p इक्वल्स z, आई से p इक्वल्स z, ओके। अब मैंने क्या किया, p एक रेफरेंस बना दिया मैंने z का, राइट, और अगेन एट द नेक्स्ट टाइम मैंने फिर क्या किया, r को 10 का रेफरेंस बना दिया, मींस r को भी मैंने वैल्यू 10 असाइन कर दी। तो गाइस देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपस में घूम रहे हैं, लेकिन जो 10 है उसका एड्रेस क्या, एड्रेस चेंज हो रहा है, एड्रेस तो वही है ना, हम सेम उसी वैल्यू के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्या एड्रेस में कोई चेंजेस आना चाहिए, नो, so that is the actually reason। yes दीपक, अब क्या कह रही हूँ मैं आपको कि
सिर्फ सेम वैल्यू है, मैंने पहले z को असाइन की थी, फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने z का एक रेफरेंस क्रिएट किया, दैट इज p, ओके फाइन। अब मैंने फिर से r को वैल्यू 10 असाइन कर दी, बट कहीं भी एड्रेस में कोई इश्यू नहीं आया क्योंकि 10 तो वहीं पर है, अपने एड्रेस पर ही है। अगर मैं वैल्यू चेंज करती तो आपको एड्रेस अलग मिलता, राइट? क्योंकि इंटीजर की बात करें, हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है कि जैसे ही हम वैल्यू चेंज करते हैं एड्रेस चेंज हो जाता है। ओके ओके, सो गाइस ठीक है, आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। तो लेट अस सी द आईडीज, और लेट मी एग्जीक्यूट दिस फर्स्ट, आई डिडंट बिफोर, so you can see id is same. Okay, now next question, this is for you all, that if I say p equals 10, then I said r equals 7, again I created a reference for this r, then I said j equals 4. So tell me the ids of these p, q, r and j, and tell me will be same or different, and which one will be different. मैम Q and R same, P and Hmm. J different. Okay, this was, who was this? One. Aman. Okay. So yes, guys, all you think same. Hmm. Correct. So I think it's now this concept is clear to you all that like कि हम अगर immutability की बात कर रहे हैं, मीन्स जैसे ही हम वैल्यू चेंज करेंगे आईडी चेंज हो जाएगी। ओके, तो दिस इज व्हाट इम्यूटेबल, मतलब हम, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग की, तो देखिए यहाँ पे इफ आई सेड ए स्ट्रिंग, दिस इज हेलो, एंड नेक्स्ट टाइम आई सेड स्ट्रिंग 1, इसी स्ट्रिंग को मैं वैल्यू देती हूँ लाइक आई सेड बाय। Now I want to check the ID of this first string. I said str, and now I said print str. Okay, so you can see, sorry, not I didn't print ID. Let me print ID of this. So you can see the difference. जैसे ही आप string की वैल्यू चेंज कर रहे हो उसकी आईडी चेंज हो रही है। So string is also a immutable, right? Now mutable is what, कि आप उसी एड्रेस पर अगर आप वैल्यू चेंज कर देते हैं, आई एम स्पीकिंग अगेन, अगर आप उसी एड्रेस पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, दैट इज व्हाट म्यूटेबल, right? So let us see some mutable objects. So I'm talking about first list. Okay, so you have taken a list, that is what check, and check में आपने कुछ एलिमेंट्स दिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एंड आपको उसमें लिस्ट में स्टोर कर दिया। ठीक है, नाउ आई वांट टू चेक द आईडी ऑफ दिस, आई गॉट इट राइट। नाउ वन मोर थिंग हियर, लेट मी टेल यू, दिस इज व्हाट इंडेक्सिंग। अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करती हूँ, it's indexing. If I say that we need to move in forward direction, forward, or you can say left to right. At that time indexing starts from 0. Okay, and if I say that backward, or I can say right to left, starts from -1. क्या हो रहा है ये, कि आप अगर इंडेक्सिंग कर रहे हो, इंडेक्सिंग क्या होता है कि अगर आपके कुछ टेबल्स है आपके पास, लाइक आपके पास ये लिस्ट है, टपल है, सेट है, कुछ भी है आपके पास, अगर आपको उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो एट दैट टाइम आपको क्या करना होता है, इंडेक्सिंग करनी होती है। इंडेक्सिंग क्या होता है, या तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हो। मीन्स आपको अगर लेफ्ट टू राइट मूव करना है तो आप इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो आप इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब आपने क्या किया, आपने अपना आईडी चेक किया आपने लिस्ट का, देन यू सेड चेक with square brackets 0. 0 is what, index number of
योर लिस्ट। आपने क्या किया, आपने 0 पे चेक करना है कि एक्चुअली में कौन सा एलिमेंट है उस लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे प्लीज गाइस कंफ्यूज मत होना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रहा है कि आप एक लिस्ट के अंदर है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट ये कह रहा है कि आप उस लिस्ट, ये जो चेक जो आपका लिस्ट है उसके अंदर एलिमेंट एक्सेस करने वाले हो बाय यूजिंग दिस इंडेक्स। मतलब ये इंडेक्स का फॉर्मेट है, मतलब जब आपको इंडेक्सिंग करनी है अपने किसी भी टेबल के अंदर तो आप क्या करते हो, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस इंडेक्स नंबर को लिखते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिस्ट में एक्सेस करोगे तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, टपल में एक्सेस करोगे तो आपको पैरेंथेसिस लगाने, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को ही यूज करते हैं। ओके, सो व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस यू कैन सी दैट कि 0 इंडेक्सिंग पर आपका एलिमेंट 1 है। ओके, अगर मैं इंडेक्सिंग 1 पे चेक करती हूँ तो एलिमेंट इज 2 एंड इफ आई से चेक ऑफ 2 आई गॉट 30। ओके फाइन, व्हाट आई डिड एक्चुअली, मैंने सिर्फ इतना किया, आपको अभी एलिमेंट्स एक्सेस करना बताया है कि अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और इफ आई से दैट मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, इन दैट केस आई से चेक ऑफ -1 means आपका रिप्लाई इज 30, मीन्स यू गॉट द रिजल्ट दैट इज 30, मीन्स आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप मूव करना स्टार्ट करते हैं तो वो -1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कर दूं -3 तो दिस इज व्हाट 1, मीन्स आपका -1 -2 एंड -3 एंड -3 पे आपका नंबर क्या है 1 है। ओके, मतलब चेक ऑफ 0 और चेक ऑफ -3 बोथ आर सेम। ओके, तो ये आपको ध्यान देना होगा, मतलब कि आपको लेंथ पे देखना होगा कि चेक ऑफ 0 एंड चेक ऑफ रिवर्स, जब आप ऑर्डर में जो भी आपका नंबर आता है उस नंबर पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई सेड कि हम म्यूटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो म्यूटेबिलिटी मतलब आपको सेम आईडी पर एलिमेंट्स को चेंज करना है। ओके, तो मैंने बोला मुझे चेक ऑफ 1 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर पर जो एलिमेंट ऑलरेडी 2 है मुझे उसे 20 करना है। I want to replace the value, right? So let me do and check that क्या element check हो गया, element change हो गया, yes, element has been changed। जो पहले 2 था अब वो 20 हो गया। और अगर मैं ID की बात करूं तो यहाँ पे ID आप देख रहे हैं क्या है 65856, एंड अगर हम नीचे देखते हैं तो भी यही है 65856। सो व्हाट हैपेंड कि आप अगर लिस्ट में एलिमेंट्स को चेंज करना चाहते हैं विद इन द सेम एड्रेस, उसी एड्रेस पर, तो पॉसिबल है बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लिस्ट आर म्यूटेबल। अगर कई बार नहीं याद रहता तो सिंपली आप क्या करोगे, एक्सेस करो और एलिमेंट्स को एक्सेस करो बाय यूजिंग इंडेक्सिंग एंड ट्राई टू रिप्लेस द वैल्यू। इफ इंडेक्सिंग इज पॉसिबल तो यू कैन, इफ यू कैन रिप्लेस द वैल्यूज देन दिस इज अ म्यूटेबल। इफ इट इज नॉट, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ टपल। आई टोल्ड यू दैट कि अगर हम सिंपल पैरेंथेसिस की बात कर रहे होते दिस इज व्हाट, दिस इज अ टपल। ओके, तो अगर आपको नहीं पता कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया, मुझे एक्चुअली में नहीं पता ये क्या है, मैंने किसी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज ले लिए बट मुझे नहीं पता ये टपल है या लिस्ट है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, यू विल सिंपली यूज योर टाइप फंक्शन कि एक्चुअली में इसका डेटा टाइप क्या है। तो व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दैट you will see this is the tuple, right? So don't get confused, every solution is here with us. Now I want to check that indexing is possible or not in this tuple. So let us check. Indexing is possible means we can access the elements of the tuple, right? Now if I said phk of 1, phk of 2, I'm getting phk of 0, okay fine, 11। okay, now अब इंडेक्सिंग हो गई, मतलब मैं चेक कर पा रही हूँ, एक्सेस कर पा रही हूँ मैं अपने टपल के एलिमेंट्स, बट व्हाट आई वांट टू डू, अब मुझे ये चेक करना है। इंडेक्सिंग तो चलो ठीक है, आपने एक्सेस कर लिया एलिमेंट को, बट ये मेरा म्यूटेबल कंसेप्ट नहीं है। म्यूटेबल कंसेप्ट मेरा ये है कि मैं उसी आइट्रेबल के अंदर अगर मैं वैल्यू को चेंज कर दूं उसी एड्रेस पर, दैट इज म्यूटेबल, राइट? सो लेट अस डू दैट एंड आई गॉट एन एरर because tuple objects doesn't support item assignment, means tuple is immutable, right? So guys, list and tuple mutability concept is clear to you? Anyone has doubt here?
क्लियर मैम? ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की. स्ट्रिंग आर ऑल्सो इम्यूटेबल, बट लेट अस सी हाउ. इफ आई सेड a इक्वल्स हेलो एवरीवन, मैंने एक स्ट्रिंग दिया. स्ट्रिंग आपको पता है जब भी हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में कुछ भी पास करते हैं वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, राइट? आई वांट टू चेक द आईडी ऑफ दिस a एंड आई वांट टू access the element of this string. Is it possible? Yeah, this is possible. I can access the elements of the string, right? If you say a of 5, this is a space, single space. You can see that आप एक string को access कर रहे हो, तो that's why आपको string में ही output मिल रहा है. तो आपने कहा a of 4, तो जब आप 0 से access करना शुरू करोगे तो 0 पे आपका h है, 1 पे e, 2 पे l, 3 पे l and 4 पे o, right? So that's why you got this result, that is o. If you said a of 5, तो 5 पे आपका क्या है, सिंगल स्पेस है, राइट? तो इसीलिए आपको क्या मिला, ये सिंगल स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पर. ओके, नाउ इफ आई सेड a of -1, मतलब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो a of -1 क्या होगा, इट्स e. When I will execute that, you can see it's e, right? So like that you can access your elements in the string, means indexing possible hai. But can we replace the elements in the string? Can we? So let us check. I said a of 13 equal h. So when I will execute, it give me an error, that is name error. Means name h is not defined. Like if I say that if 13, 5, whatever you want to, but it will not. It said string object doesn't support item assignment. It doesn't support. So means strings are immutable, right? Lists are mutable, tuple are immutable. Now set. सेट की अगर हम बात करते हैं तो सेट में हम क्या कर सकते हैं, हम असाइनमेंट तो नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, मैं बताती हूँ आपको. देखिए आपका ये सेट, ठीक है, ये क्या है आपका अनऑर्डर्ड. देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी आपने एलिमेंट्स दिए हैं यहाँ पर, ठीक है. पहली बात, सेट क्या करता है कि आपको जो एलिमेंट्स, अगर कुछ रिपीटेड वैल्यूज हैं आपके सेट के अंदर, पहली बात सेट क्या होता है, ये देख लो कि अगर हम करली ब्रेसेस में कोमा सेपरेटेड वैल्यूज ले रहे हैं, अगर हम करली ब्रेसेस में कोमा सेपरेटेड वैल्यू ले रहे हैं, सो दिस इज अ सेट. हियर यू कैन सी दिस इज अ सेट. अगर मैंने उस सेट का टाइप चेक किया, मतलब मी का जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, जो वेरिएबल, अगर मैंने उसका टाइप चेक किया, दिस इज अ सेट. ओके फाइन. नाउ अगर मैं इस सेट को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मैंने डिस्प्ले किया उसका रिजल्ट, तो व्हाट कैन आई सी दैट कि पहले जो ऑर्डर था सेट का, अब ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो गया. सेकेंड थिंग, जो रिपीटेड वैल्यूज थी आपके इस सेट के अंदर, वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है. दैट्स व्हाई सेट इंडेक्सिंग भी नहीं करता है, ठीक है. सेट इंडेक्सिंग भी नहीं करता है क्योंकि पहले आपने जिस भी ऑर्डर में आपने सेट को एलिमेंट्स दिए हैं, इट वोंट कीप इट एज लाइक दैट, ये चेंज कर देता है ऑर्डर को. सेकेंड थिंग, आपने जो डुप्लीकेट वैल्यूज दी थी, जो रिपीटेड वैल्यूज दी थी आपने अपने सेट को, वो रिमूव कर देते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, राइट. नाउ सेकेंड थिंग, चलो सेट का हो गया. जब आपका इंडेक्सिंग ही पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट चेंज द एलिमेंट एट द पर्टिकुलर पोजीशन इन द सेट, सो दीज आर इम्यूटेबल, बट इटसेल्फ इट्स म्यूटेबल. बट अगर हम बात करते हैं सेट की, तो सेट इटसेल्फ म्यूटेबल होते हैं. मतलब सेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स डाल सकते हैं. तो देयर इज अ मेथड ऑफ सेट. what is that? This is, if I say that, it's, I think it's update. It's update. If I say that 5 or 4, so you can see if I say like, wait, I said t equals 2,3, and then I said I want to update this. So let me execute this. Yeah. So what happened actually?
क्या करता है ये अपने अगर इसको इसके अंदर हमें सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स डालने हैं, हमें इंसर्ट कराने हैं हमारे इस सेट के अंदर, सो हमें क्या करना होगा, हमें इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट लेना होगा, राइट? उस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को हम यहाँ अपडेट करा सकते हैं, ठीक है? म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को हम नहीं करा सकते हमारे इस सेट के अंदर, ठीक है? लेकिन हम अपडेट कर सकते हैं हमारे सेट के अंदर, दैट्स व्हाई सेट इटसेल्फ म्यूटेबल है। बट अगर हम चेक करें कि क्या इंडेक्सिंग के थ्रू हम एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल हियर, राइट? विद इन द सेम एड्रेस अगर हमें कुछ और एलिमेंट्स अपडेट करने हैं हमारे सेट के अंदर, वी कैन डू दैट, राइट? बट वी कैन नॉट डू रीअसाइनमेंट। ओके, सो वन मोर थिंग आई वाज टेलिंग यू, या गाइस, सेट और डिक्शनरी की जब हम बात करते हैं, बोथ स्टोर्स द वैल्यू इन कर्ली ब्रेसेस। अगर हम बात करते हैं डिक्शनरी की, तो यू कैन सी हियर, डिक्शनरी में क्या होता है कि, अच्छा आपके सामने देखिए बनी हुई है डिक्शनरी, यहाँ पर ये देखिए। डिक्शनरी क्या होता है कि कर्ली ब्रेसेस की बात करें, कर्ली ब्रेसेस में ये वैल्यू होल्ड करते हैं कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, बट डिक्शनरी में क्या होता है, हमारे पास एक की वैल्यू पेयर होता है, राइट? मतलब एक की होगी और एक वैल्यू होगी, एक की होगा एक वैल्यू होगा, एक की होगा एक वैल्यू होगा, लाइक दैट वी स्टोर द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। बट सेट में क्या है, सिंपली आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रखते हो, बट रिपीटेड वैल्यूज आर नॉट अलाउड। बट आप जब एग्जीक्यूशन पे देखते हो तो रिपीटेड वैल्यूज रिमूव कर देता है आपका सेट, राइट? नाउ आई सेड, अगर मुझे चेक करना है कि मैंने एक ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस दे दिया है, आई वांट टू चेक द टाइप ऑफ दिस ए, सो गाइस इट विल बी अ सेट और डिक्शनरी, because so many experienced persons are also here. Okay. Yes, others. Okay. Okay. What about others? Where is Soumya? He's also here. Chirag, Shubham, Shubham, no. Hemant. Okay. Where is Chirag and Soumya? Come on, Chirag and Soumya, you both reply. I'm waiting. You were not sure, that's why you didn't reply. Okay, Soumya, भाग गए हो आप? Okay. No, man. You didn't reply, na? That's why I'm asking. Okay. Yes, ma'am. What? This is set or dictionary. Okay, guys. This is a dictionary. This is not a set. जैर तुमने तो चीटिंग किया पक्का। नहीं मैम, मैंने एग्जीक्यूट करके किया उसको। ले टाइम लगा इसे चीटिंग ही कहती है, इसे हम चीटिंग ही कहते हैं। सेम सौम्या, वेरी गुड। प्राची ऑल्सो डिड चीटिंग, मतलब आप जो लेट रिप्लाई है ना, ये सब चीटिंग है। रहने दो, आप लोग मत करो रिप्लाई। अरे ये तो सही है, मतलब गाइस अगर 1-2 लाइंस का कोड हो ना तो आप एग्जीक्यूट ही कर लिया करो, ठीक है? तो आपका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। ओके फाइन। तो ठीक है गाइस, ये डिक्शनरी होता है। we implement the things. You implement the things, okay, great. Okay, so guys, तो मैं क्या कह रही थी यहाँ पर, ये सेट है या डिक्शनरी? तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट ये डिक्शनरी है। अगर हमें चेक करना है, हमें कोई सेट बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके आगे सेट लिखना होगा। अगर हम एक एम्प्टी सेट बना रहे हैं, दिस इज अ एम्प्टी डिक्शनरी, नॉट अ एम्प्टी सेट। ओके, अगर हमें एम्प्टी सेट बनाना है तो वी विल से A equals set and then type of A, if I will check that this is a set.
right? So there is a difference. We have to keep these things in our mind also. Next is what? Dictionary. Dictionary is mutable. You can see that if you want to access the element in the dictionary, you will simply use your key. When you will put your key into the index, you will get the value. Sorry, I didn't execute this first. Yeah, so now this is one, right? Now if I want to change the value of this key, so is this possible here? Yeah, this is possible because dictionary is mutable. I want to check the value. So you can see, yeah, the value has been changed. Before it was 1, but now it is 3. So yes, guys, clear to you all? Till now, any doubt? So we read about type conversion, typecasting, or we can say mutable and immutable concepts. Both we learned today. So I hope there is no confusion with you all. Okay. So let's do a test now.